पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पुरुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलम् यत् शुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्य
तस्मिन् दृष्टे परावरे हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। आनंद जी, परम पूज्य स्वामी श्री अध्यात्मानंद जी, परम पूज्य स्वामी श्री अपरोक्षानंद जी, ડૉક્ટર કરણસિંહજી અને લહેરી સાહેબ, આ કંઈક એવો 5 તત્વોનો સુમેળ છે કે જે આપણે વર્ષોથી ઝંખીએ છીએ ને જેને આ જ્ઞાનને અંતે જે આપણે કરવા ઈચ્છીએ છીએ તે એક સુભગ સમન્વય આજે અહીંયા સધાયો છે, એનો અમને સૌને ખૂબ આનંદ છે. વધારે સમય ન લેતા આજે મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરી અને આપણે આગળનો કાર્યક્રમ આગળ ધપાવીશું. સૌ પ્રથમ ઘણો વિષય, ઘણો જ ગહન વિષય છે, સમજવો મુશ્કેલ છે. એને આપણા અનુકરણમાં અથવા એને આપણી જિંદગીમાં લાઈફમાં એને મૂકવા માટે, ઇન્ટ્રોડક્શન કરવા માટે, આપણી લાઈફમાં એનું આચરણ કરવા માટે એનાથી પણ ઘણો વધારે મુશ્કેલ છે. પરંતુ એટલા માટે જ હું જોઉં છું કે આ જે વિષય છે એને માટે લોકો ઘણો ઓછો રસ ધરાવે છે. સાધારણ રીતે એક વખત એવો હતો કે જ્યારે વેદાંતમાં લોકો અત્યંત રસ ધરાવતા હતા, મેં જોયું છે. પણ આજકાલ આ રસ ઓછો થયો છે. પણ મારે કહેવું પડશે કે આપણી પાસે જે બધા વિદ્વાનો બેઠા છે એ લોકોની સહાયથી આજે આ વિષયમાં લોકોને વધારે ને વધારે રસ જાગતો જાય છે. એને માટે અમને પણ એમ થયું કે કંઈક કરવું જોઈએ. વેદાંતના વિષય એક વખત સમજવા માંડો અને તમારી જિંદગીમાં એનું કંઈક અનુકરણ કરવા માંડો તો એ એટલો ગંભીર નથી કે એટલો મુશ્કેલ નથી. પરંતુ એને સમજવું એ બહુ સહેલું નથી. આજે તમે જોયું છે કે જે સાધારણ લોકો કે જે લોકો સારું એજ્યુકેશન પામ્યા હોય, જેમની કેળવણી સારી થઈ હોય, છતાં પણ બધી ઘણી સારી ડિગ્રી અને ઘણી સારું
જીવનમાં પણ એમનું પોતાનું સ્થાન ઘણું સારું મોખરે ભોગવ્યું હોય તેવા લોકોમાં પણ આજે વેદાંતની સમજ ઘણી ઓછી છે એવું મેં જોયું છે. અને રસ પણ આજ સુધી મેં જોયો નથી. પરંતુ હવે એક નવો યુગ આવતો જાય છે કે જેને લાગે છે કે વેદાંત ન સમજવું એ પણ એક ખોટું છે. આ વિષયમાં વધારે સમજ રાખવી એ આપણા પોતાના જીવન માટે બહુ જરૂરી છે. જીવનને ઘણું આનંદિત બનાવી શકે છે જો આપણે પૂરેપૂરું સમજીએ તો. એટલે અમને એમ થયું કે આ વિષય પર હવે આપણે જાગૃતિ રાખવી જોઈએ. સ્વામી વિદિતાત્માનંદ જે અહીંયા છે, હું તો જાણું છું કે એમને ત્યાં કેટલું સરસ કામ થાય છે આમાં. અને પણ આવી જાતના આશ્રમોની કે આવી જાતના પ્રચારની ઘણી જરૂર છે. આજે ઠેર ઠેર પ્રચાર થવો જોઈએ એટલું જ નહીં, પણ મેં જોયું છે ગામડાઓમાં, આજે ગામડાઓમાં લોકોને રસ છે વેદાંતમાં, પણ એ લોકો પૂરો અંદરનો રહસ્ય કેટલીક વાર સમજી શકતા નથી. તો એ લોકોને સમજાય એવું, જેને એવું કહ્યું કે વેદાંત મેડ ઇઝી અથવા વેદાંત સામાન્ય માનવી માટે સરળ થાય એવું વેદાંત એ આપણે જરૂરી છે. આ માટે અમને એમ લાગ્યું કે નહીં, અમારી સંસ્થામાં પણ અમારે કંઈ કામ કરવું જોઈએ. અમે એક સેન્ટર ઓફ લર્નિંગ શરૂ કરવા માગીએ છીએ કે જેમાં આપણા બધા જે આટલા વિદ્વાનો છે તે દરેકનો અમે લાભ લઈ શકીએ. એનાથી કંઈક વેદાંતનો પ્રચાર થાય, એનાથી કંઈક સારું કામ થાય, એ બહુ જરૂરી છે. આજનો યુગ ભૌતિકવાદમાં બહુ ચાલી ગયો છે. એ ભૌતિકવાદમાંથી જો ખેંચવું હોય લોકોને અને ઈશ્વર તરફ પ્રેરવા હોય વધારે, તો વેદાંતની જરૂર ઘણી છે. આ માટે મેં જોયું છે કે આજથી લગભગ 5 વર્ષ પહેલાં અમારે ત્યાં મુંબઈમાં ડૉક્ટર કરણસિંહ સાહેબ આવ્યા હતા અને એમણે એક વિષય હતો ગીતાનો ઉપર, ઇસેન્સ ઓફ ભગવદ્ ગીતાનું અંદરનું ઇસેન્સનું રહસ્ય, એ વિષય ઉપર ઘણું જ સારું એમણે વક્તવ્ય કર્યું અને એ વક્તવ્ય બધાને ઘણું પસંદ પડ્યું. એની બુકલેટ પણ અમે એક છપાવી છે અને આપને જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, રસ હોય એને અમે આપવા માટે બહુ ખુશી થઈશું, કારણ કે અમારી પાસે મેં રાખી છે અને પ્રચાર થાય છે. એવી જ રીતે એક વખત ભારતીય વિદ્યાભવનમાં મુંબઈમાં ડૉક્ટર કરણસિંહજીનું વેદાંત ઇન ધ ન્યુક્લિયર એજ, આ ન્યુક્લિયર જે એજ કહેવાય છે કે જેમાં વી આર સ્ટડિંગ મોર એન્ડ મોર, ફિઝિક્સની ડેવલપમેન્ટ થતી જાય છે, ન્યુક્લિયર સાયન્સની વધારે ડેવલપમેન્ટ થતી જાય છે. આ જાતના જગતમાં હવે વેદાંતની શી જાતની જરૂર છે, કઈ રીતની એની જરૂર છે, એનો શું ઇમ્પેક્ટ છે, એ જાણે લોકોને શું સમજ આવશે અને એનાથી સોસાયટી ઉપર શું અસર થશે. આ એક મહાન વસ્તુ છે અને એને માટે અમને એમ લાગે કે વધારે ને વધારે એનો પ્રચાર થવો જોઈએ, વધારે લોકો એને વિશે જાણવું જોઈએ, તો ખરેખર સમાજને માટે તે ઘણું લાભદાયક. મારે આટલું જ કહેવાનું છે. આ વિષયમાં શું વધારે કંઈ કહેવાનું છે નહીં. ડૉક્ટર કરણસિંહ સાહેબને તો આપ સૌ જાણો છો, એમનો હું પરિચય બહુ આપું તે મને યોગ્ય લાગતો નથી, કે એમણે તો સૌ જાણે છે કે કેટલું કામ કર્યું છે અને કેટલા વર્ષોથી એમને પોલિટિક્સમાં, સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં, ફિલોસોફીમાં, એજ્યુકેશનમાં દરેકમાં એમનો બહુ મોટો ફાળો છે, ઘણો મોટો ફાળો છે. ઓરોબિંદો ઓરોવેલમાં તે ચેરમેન છે. આજે આપણા વિદ્યામાં રાજ્યસભામાં પણ તેઓ એથિક્સ કમિટીના ચેરમેન છે અને એમાં રાજ્યસભામાં ઘણા વર્ષોથી છે. એમનું પોલિટિકલ કેરિયર ઘણી લાંબી છે અને એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન પણ ઘણું મોટું છે. એટલે આજે આપણી સન્મુખ છે એ આપણું એક સદભાગ્ય છે. અને હું એમ ઈચ્છું છું કે આવી વ્યક્તિઓ અવારનવાર અમદાવાદમાં આવે તો આવા લોકોનો વધારે મેળાપ થાય અને આનો વધારે પ્રચાર થાય, જેની બહુ જ જરૂર છે. આટલું કહી હું આપને વિનંતી કરું છું, સૌ લોકો આવ્યા છે એ લોકો એક રીતે ખેડાણ કર્યું છે. આ પણ એમના રસનો વિષય છે અને આ વિષયનું એક ઉઘાડ એ લહેરી સાહેબના હસ્તે થાય એવી ઈચ્છાથી આજે અમે એમને ખાસ વિનંતી કરી હતી ને એમણે અમારી વિનંતી સ્વીકારી છે. વેદાંત ટુડે આ વિષયની પ્રસ્તાવના
લેરી સાહેબ કરશે. પરમ આદરણીય આપણા મહેમાન ડૉક્ટર કરણસિંહ સાહેબ, સ્વામી વિદિતાત્માનંદજી, પરીક્ષિતભાઈ દિવેટિયા, મંદાબેન, આપ સૌ વેદાંતમાં, સંસ્કૃતમાં અને જીવનના અનેક પાસામાં ઉત્સાહથી કાર્ય કરી રહેલા સૌ વિદ્વજ્જનો, સૌને મારા પ્રણામ. I will seek your indulgence to speak in English so Dr. Karan Singh can follow more easily than if I speak in Gujarati. First of all, at the outset, I would like to thank Parikshit Bhai and Mandaben who have made it possible to have Dr. Karan Singh for 3 days here and speak at 4 venues on different subjects. It is really a God-sent opportunity which we don't get that easily. We have many organizations which are active in Ahmedabad. There are many organizations which are serving people, but to get a person of the stature of Dr. Karan Singh is a remarkable achievement, and we are really grateful to you both, Parikshit Bhai and Mandaben. Dr. Ramlal Parikh Memorial Lecture was the main occasion for which he came, and then they utilized this opportunity to have him address us on variety of subjects. As we all know, Plato in his Republic had recommended that a philosopher should be the king, should be chosen from philosophers. A king has to be chosen. Here is a king who has chosen to be a philosopher. And that is not the only part of his personality. He has a versatile personality. Statesman, scholar, linguist. And if I say it further, an institution almost like a living university which we have. I had privilege of listening to him in past in Delhi, in Mumbai, and the way he has presented before us issues yesterday and day before, we can appreciate that he really combines a rare insight into the tradition and the modern world. We are living in an age of information and knowledge. There is a broad and speedy highway to get to any information or knowledge. But there is scarcity of wisdom. And when Dr. Karan Singh speaks, we realize that it is not only the information and knowledge he is sharing the experiences which has led him to conclude certain truths which are eternal, which have been contained in our scriptures, but he presents them in such a way that we find it quite interesting and acceptable. Dr. Karan Singh is one of the rare personalities who has for many decades participated in the public life and set a standard which I don't think we see anybody matching it in foreseeable future. When there is scarcity of wisdom, we need people like Dr. Karan Singh to guide us. As far as the subject is concerned, I don't have much to say on it, neither I am qualified to do so. But when we are running Sadvichar Parivar, we get lot of input because Sadvichar Parivar is the institution which has pioneered careers of many kathakars who have been very popular now. Our founder Haribhai Panchal,
was a very dedicated person. Over 6 decades, he carried out many original ideas and translated it into practice, whether it was blood donation way back or organ donation or even consuming less food for cremation. There was no subject which he did not touch, and he was very effective at that. And in that we have large number of people who come with their writings, and recently we have published a book by Dr. Mahadevia, who is settled in USA, and any one of you who needs it, kindly contact Sadvichar Parivar. We are distributing it courtesy Dr. Mahadevia, and it is on Vedant, and it contains whatever was written in Sanskrit. He has very ably translated it into English. The second institution, which is just down the road, Bhagavad Vidyapit, which is teaching Sanskrit. There is the only institution in Gujarat which is giving B.Ed in Sanskrit, affiliated to Somnath Sanskrit University. Krishna Shankar Shastri was the person who studied Bhagavad and all the commentaries, and he has combined them into volumes, which are 14 volumes. We have been able to reprint it recently, courtesy some donor. And that contains the essence of Bhagavad Puran and all the things which are discussed there. And whoever had made, whether Vallabhacharya, Madhvacharya, who had made commentary on that, he has studied them and then given his own. And he did it when there was no electricity in a village, using a lantern. The person who has done that, scholarly work, is very well known. And I only feel that I should have been able to get the entire batch of our 300 students who are undergoing this course. And the past students are settled all over the world. Many of them are doing very good work of spreading the knowledge of Indian culture abroad. As far as this religious matter is concerned, with my long career in government, I did come into contact with many people. There was one Swami Maharaj, Shantidas Ji of Jamnagar. He was a successor to one of the disciples of Kabir who came and settled in Gujarat. He had hardly completed primary education before he ran away in the direction of Dwarka and settled in Jamnagar. Though not formally educated, he had some commitment and wanted to establish a school for girls in backward district of Banaskantha, where literacy in 1971 was as low as 8%. I came in contact with him. After a few years, when I went to see him once, he gave me a fruit basket, and I commented that we are grahasthas, we are not supposed to take things from sannyashis, we should be giving it. And I must recall this experience. He said, "Bhai, there is something wrong with me, that after so many years, you are feeling that I am giving and you are taking. This bhed, the difference which you are experiencing is my shortcoming." He said, you have studied well. I realize that the feeling of oneness which has been preached, he could convey it in a small anecdote without any effort, and that is how he used to even address. I have never seen him talking more than 20 minutes anywhere, but was always effective, and he lived like that. And we have in Gujarat a strong tradition of bhakti, and our famous Gujarat's what we call Adya Kavi, the original poet, said that Bhutal Bhakti Padarath Motu Brahma Lokma Nahi Re Harina Jante Mukti Na Mage Mage Janma Janma Utar Re. And purpose was Nirakhva Nanda Kumar. This is the thing which is also summarized in Krishnashtakam when we finish the
reciting of Krishnashtakam, the last words are Bhave Bhaveshu Bhaktima. We have been praying that we are reborn as human beings and we carry out our devotion to Lord Krishna and through him to the world in the best possible manner. I will not be standing between you and Dr. Karan Singh. I am really happy that today we have such eminent people on the dais and in the audience that we will be able to start what Parikshit Bhai said as center of learning and bring more and more erudite people from all over the country and the world to share with us. I am really honored by having this opportunity of speaking before you. Thank you so much. Very sad for opening our minds and hearts to this subject. And I think now the appropriate environment is created. I invite Dr. Karan Singh ji to give his talk. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्ंशस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 न यावत् उमानाथ पालारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। आदरणीय स्वामी विदितात्मानंद जी जो आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, परीक्षित भाई दिवतिया जी जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, मंदा बहन, श्री पी.के. लहरी जो बहुत सारी संस्थाओं को यहाँ चला रहे हैं, और यहाँ सभागार में उपस्थित स्वामीगण स्वामिनीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, इतने स्वामियों को देख के मुझे कुछ संकोच हो रहा है, क्योंकि हम तो स्वामी से ज्ञान सुनते हैं, देते नहीं है, धृष्टता है। मैं तो सन्यासियों गृहस्थियों के लिए बोलता हूँ, सन्यासियों के लिए नहीं। इसलिए यदि कोई अनुचित हो मैं पहले ही क्षमा मांगने को तैयार हूँ। अध्यक्ष जी, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जो बहुत शीघ्रता से परिवर्तित हो रहा है। प्राचीन मान्यताएं टूट रही हैं, नवीनों का जन्म हो नहीं रहा है, और हमारी पीढ़ियां त्रिशंकु की तरह कुछ अतीत और भविष्य के बीच में अपने आप को पाती। मैं विश्व में घूमता हूं, जहां भी जाता हूं एक मानवीय चेतना का समुद्र मंथन हो रहा है, और समुद्र मंथन में गरल भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, दोनों आ रहे हैं हमारे साथ। ऐसी परिस्थिति में हम अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं, इसलिए नहीं कि हम पीछे जा सके, पीछे नहीं जा सके। काल की गति एक ही गति में जाती है, चरे वेदी भविष्य की तरफ जाती है। लेकिन इसलिए हम अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं कि क्या उसमें हमें कुछ प्रेरणा मिल सकती है, कुछ शक्ति मिल सकती है, कुछ दिशा मिल सकती है कि जो आज की परिस्थितियां हैं उनसे हम जूझ सकें। उनमें कुछ शाश्वत सत्य हैं क्या, कि जो सत्य परिवर्तित संसार होते हुए भी सत्य जो है वो शाश्वत रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे हिंदू धर्म में अनेक शास्त्र, बड़े बड़े विस्तृत शास्त्र, सारे वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्य का है, उपनिषद है, पुराण है, इतिहास है, न जाने कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने नहीं छुआ। लेकिन मुझे लगता है इनमें जो उपनिषद का ज्ञान है वो एक प्रकार से सर्वोपरि में मानता हूं। यदि हम समस्त हिमालय को वेदों के साथ
कल्पना करें कि जैसे सारे वेद हैं वैसे सारे हिमालय हैं। अगर आप हिमालय के साथ साथ उड़े तो बड़े बड़े पर्वत श्रृंग हैं हिमालय के, जो हमेशा सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। तो एक प्रकार से वेद तो हैं ही हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े श्रृंग हैं। ये उपनिषद है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वेदों के ऊपर ही उपनिषद का जो प्रादुर्भाव होता है। और आप जानते हैं हमारी सारी संस्कृति हिमालय से ही उत्पन्न हुई है। मैं तो हिमालय पुत्र हूँ। कालिदास ने कुमार संभव में बड़ा सुंदर वर्णन किया है हिमालय का। अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वः पर्वतो यनिधि वगाह्य तितः पृथिव्या एव मानदम्। और आप सब स्वामीगण भी एक न एक समय अवश्य हिमालय से ही आपने प्रेरणा ली होगी। तो जिस प्रकार से हिमालय से गंगा निकलती आ रही है और करोड़ों लोगों के जीवन को संवारती जाती है, उसी प्रकार से वहाँ से हमारी शास्त्रिक परंपरा, ज्ञान की परंपरा वहीं से उत्पन्न हुई। अब उपनिषद के बारे में क्या कह सकते हैं। उपनिषद मुझे लगता है सारे विश्व में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं या आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उपनिषद बड़े अद्भुत हैं। दो तीन इसमें चीज़ें, एक तो ये प्रश्न उत्तरी है। हमारी समस्त संस्कृति जो है एक डायलॉगिक सिविलाइजेशन। हमारा ये नहीं है कि रेवल्यूशन एक किसी ने कुछ कह दिया अब उसको आप पूछ नहीं सकते हैं, उसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो प्रश्न और उत्तर है। सारे उपनिषद जो हैं वो प्रश्न उत्तर के ऊपर निर्धारित है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवे। कैसा शौनक ने पूछा प्रश्न, वो क्या विद्या है जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सके। फिर उद्वय विद्या की बात करते हैं। और ये जो गीता भी प्रश्न उत्तरी है। तो हमारी समस्त संस्कृति जो है वो प्रश्न उत्तरी के ऊपर निर्धारित है। और गीता में तो अद्भुत गुरु भी मिलते हैं और अद्भुत शिष्य भी मिलते हैं। यम हैं, याज्ञवल्क्य हैं, जनक हैं, अंगिरस हैं, अष्टावक्र हैं, श्वेताश्वतर हैं, बड़े बड़े गुरु हैं। और शिष्य भी बड़े महान हैं, क्योंकि बहुत गुरु बड़ा हो तो शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो एक जबरदस्त प्रश्न पूछे। नहीं, नचिकेता ने प्रश्न पूछे, अंगिरस ने पूछे, ये शौनक ने पूछे, श्वेत केतु, शौनक, गार्गी इत्यादि। तो ऐसे ऐसे अद्भुत व्यक्ति वहाँ उपस्थित उपनिषद में होते हैं कि जिनसे हम आज भी प्रभावित होते रहते हैं। अब उपनिषद में क्या ज्ञान है उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान के भंडार है वो। लेकिन मैं कुछ बिंदु उसमें से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग, जब मैं यहाँ तो खैर बात और है, विदेश में जाता हूँ तो लोग समझने में कठिनाई होती है उनको कि वेदांत है क्या। तो मेरे विचार में पहले तो दो बिंदु हमें समझना है। एक तो ब्रह्मन, सर्वव्यापी ब्रह्मन। ब्रह्मैविदम् अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म तश्चेत् न सोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम् ब्रह्मैविदम् विश्वमिदम् वरिष्ठ। ये समस्त ब्रह्मांड जो है ईशावास्य है। केवल ये छोटी सी पृथ्वी नहीं, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड जहां भी है वो सब उसी एक दैविक शक्ति से ओतप्रोत है। ये ब्रह्मांड को पहले समझना बड़ा आवश्यक है। जो आज के साइंसदान यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ढूंढ रहे हैं कि वो क्या शक्ति है जो हर एक शक्ति को समझा सके, हर एक शक्ति के पीछे उसका आध्यात्मिक जो प्रतिबिंब है वो ब्रह्मांड के विचार में है। ये जो ब्रह्म है ये सर्वव्यापी है। जो भी सृष्टि है, जो होने वाली है, जो हुई है, वो सब ब्रह्म से ही उत्पन्न, ब्रह्म से ही उत्पन्न। जो बिग बैंग हम कहते हैं वो केवल एनर्जी का बैंग नहीं था, केवल प्रकाश का बैंग नहीं था, चेतना का बैंग। उसमें उसी में चेतना जो है, ब्रह्म की चेतना निहित है इस सारे ब्रह्मांड में। तो पहले तो हमें ब्रह्म की का महत्व समझना चाहिए कि क्या ब्रह्म क्या है। और दूसरा फिर आत्मा। हर एक व्यक्ति के अंदर ब्रह्म का प्रतिबिंब जो है वो आत्मा है।
तो ब्रह्म और आत्मा ये दो जब तक लोग समझे नहीं कि क्या है, तब तक वेदांत की बात आगे चल नहीं सकती। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति, हर एक के हृदय में ब्रह्म का निवास है। अमृतस्य पुत्रः कहा जाता है मनुष्य जाति। तो मनुष्य होने के नाते ही हमारे अंदर वो प्रकाश निहित है जो सारे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। ये मूल प्रश्न जो, इसको समझना बड़ा आवश्यक। ये नहीं है कि वो कहाँ है और हम कहीं, हमारा कोई उसके साथ संबंध नहीं। हम इसको नहीं मानते। नहीं, हम मानते हैं कि मिथ्या है। हम मानते हैं कि ब्रह्म का ही ये प्रतिबिंब है। ये सारा समस्त संसार जो है ये भी सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, जीवो शिव एव नापरा। हमारा वो शंकर ने दूसरा कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव नापरा। हम तो ये कहेंगे ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, जीवो शिव एव नापरा, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है वरिष्ठम, इसको हम कैसे मिथ्या कह सकते हैं? ये तो ब्रह्मांड है हमारे सामने, हम उसके अंदर जीवित हैं, हम उसके अंदर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए वो परब्रह्म की शक्ति और हमारे हर एक व्यक्ति में आत्मा का प्रकाश, ये दो पहले बिंदु हमें समझना बड़ा आवश्यक। और तीसरा बिंदु है फिर इन दोनों का मिलना, मिलाना, उसे योग कहते हैं। योग शब्द जो है, अंग्रेजी शब्द जो योग है, उससे, उसी युज धातु से है, इनको मिलाना। तो आत्मा और ब्रह्म को मिलाना जो है उसी को योग है। और योग के 4 प्रमुख द्वार हैं। वैसे तो हजारों मार्ग हैं, लेकिन 4 प्रमुख मार्ग हैं योग के। पहला मार्ग है ज्ञान योग। ज्ञान योग सत्य असत विवेक, विवेक करे जो, उसमें उपनिषद के ज्ञान है, ब्रह्म सूत्र हैं। हम अपने मस्तिष्क को, अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म बनाएं कि हम हर एक चीज के पीछे जो सत्य है उसको देख सकें। केवल बाहर की मूर्ति को ना देखें, आंतरिक जो सत्य है उसको देख सके। ज्ञान योग, ज्ञान की भी बहुत, श्री कृष्ण ने भी कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो ज्ञान योग एक ऐसा योग है कि जिससे हम अपनी आत्मा के अंदर उस ज्ञान को ले आने का प्रयत्न कर सकते हैं और उसके साथ, पर ब्रह्म के साथ या परमात्मा का, ब्रह्म भी मैं मानता हूं साकार है, निराकार भी। तेजोमयम सगुण निर्गुण मद्वितीय, आनंद कंदम अपराजितम अप्रमेय। कितनी सुंदर परिभाषा है। तेजोमयम सगुण निर्गुण मद्वितीय, आनंद कंदम अपराजितम अप्रमेय, नागात्मकम सकल निष्कलमात्म रूपम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्व। तो अगर केवल निराकार हो ब्रह्म तो हम उनके साथ कोई संबंध बना नहीं सकते, लेकिन साकार भी है। तो ज्ञान योग एक प्रमुख योग है जिससे हम आत्मा और परमात्मा को मिलाने का प्रयत्न कर सकते हैं। एक मार्ग है प्रमुख। दूसरा मार्ग है भक्ति योग। अगर ज्ञान योग मस्तिष्क का मार्ग है, भक्ति योग हृदय का मार्ग। जब तक हृदय पटल हमारे नहीं खुलते, जब तक हमें भगवान से प्रेम नहीं हो जाता, समर्पण नहीं हो जाता। अगर बड़े बड़े भक्त हैं, नरसिंह भक्त हैं, मीराबाई हैं, ये तुलसीदास हैं, सूरदास इत्यादि, दक्षिण में नयनमार हैं, अलवार हैं, उत्तर में हमारे ललेश्वरी योगिनी कश्मीर की थी, और शंकर देव थे। समस्त भारत में जो भक्ति है वो भक्ति साकार ब्रह्म के साथ हो सकती। क्षमा करें, निराकार से भक्ति नहीं हो सकती। निराकार से मेरी तो नहीं हो सकती, हो सकता आप लोग कर सके। मैं तो निराकार से मुझे कोई प्रेम नहीं होता है, क्योंकि जब आकार ही नहीं है तो प्रेम कैसे होगा? कम से कम आकार हो तभी तो प्रेम हो सकता है ना। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे व्यक्ति हो जो निराकार से भी प्रेम कर सके। मेरे लिए संभव नहीं। मेरे लिए एक आकार चाहिए। मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, मुझे वही आकार दिखता है। कोई कृष्ण के भक्त हैं, कोई देवी के भक्त हैं, कोई कार्तिकेय के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, गणेश जी के भक्त, जिनको भी आप रूप ले लीजिए। लेकिन भक्ति योग के लिए मुझे लगता है कि एक साकार ब्रह्म की आवश्यकता है। ज्ञान योग में नहीं है। ज्ञान योग में अगर आप चाहें तो आप बस अपने ही आनंद में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन भक्ति योग जो है हृदय पटल खुलना चाहिए।
जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता है, मोहब्बत नहीं होती है, तब तक पूरा समर्पण नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति योग इतना महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। और हर एक धर्म में भक्ति योग है। ईसाई में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी हैं, सेंट तेरेसा ऑफ अवीला हैं, सूफियों में, मुसलमानों में बड़े बड़े सूफी हुए हैं, वो सब भगवान के प्रति उनका समर्पण भक्ति का है। तो भक्ति योग द्वितीय मार्ग है जो हम योग की ओर जा सकते हैं। तीसरा मार्ग है कर्म योग। ज्ञान योग मस्तिष्क का मार्ग, भक्ति योग हृदय का मार्ग, कर्म योग बाहु। और कर्म योग भी गीता में विशेषकर उसका प्रचार है, लेकिन उपनिषद में है, ईशावास्य में ही है, कुर्वन्ने विह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह एवं तो ही ना थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते। गीता तो उसमें, गीता तो एक डेरिवेटिव टेक्स्ट है, असली जो स्रोत है वो तो उपनिषद। उपनिषद में भी कर्म योग की व्याख्या की गई है और उसकी भी व्याख्या आगे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की। तो कर्म योग भी एक ऐसा, कुछ लोग पहले कहते थे कि नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए संन्यास लेना जरूरी है, सब काम काज छोड़ के हिमालय में बैठो, अपनी तपस्या करो। कुछ लोग कर सकते हैं, आप लोग भगवतधारी, आपने वही मार्ग अपनाया है, हम उसका बहुत आदर करें। लेकिन साधारण व्यक्तियों के लिए हिमालय, आप तो आजकल तो हिमालय में जाना ही बड़ा कठिन है, वहाँ वो सब गुफाएं वगैरह पूरी हो गई हैं, तो उसके लिए कर्म करना बड़ा आवश्यक है। लेकिन कोई हर कर्म नहीं है। आप दुष्ट कर्म करेंगे, कहेंगे साहब ये कर्म योग है, नहीं। कर्म योग जो है वो ऐसा योग है जो कि भगवत को आप समर्पित कर सके। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से गीता में उसकी व्याख्या की है। कर्म योग कैसे, यथ प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति। कि ये जो ईशावास्य में सारा ब्रह्मांड छाया हुआ है, वो उसको अपने कर्म से उसकी पूजा करो, सिद्धिं विन्दति। मानव मानव सिद्धि की ओर जाता है। मैं शिव का भक्त हूँ, यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधना। अगर आराधना के रूप में आप कर्म करें तब उसका योग हो सकता है, ऐसा नहीं। जो भी मैं काम करूं, चाहे ये भाषण हो चाहे कोई और हो, अगर मैं भगवान शंकर के चरणों में रखता हूं तो वो कर्म योग बन जाता है। नहीं तो दुष्कर्म भी होते हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वो तो कर्म योग नहीं माना जा सकता ना, वो दुष्ट कर्म योग है वो। इसलिए कर्म योग जो है वो तीसरा योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। और चौथा मार्ग जो है राजयोग, आंतरिक योग। इस प्रकार से अपने श्वास को संभालना, जिसमें ये प्राणायाम आ जाता है, कुंडलिनी आ जाती है। और वो जो हठ योग के आप आसन देखते हैं, वो केवल राजयोग का एक छोटा सा हिस्सा है। पूर्व में तो, पश्चिम में तो वो उसी को योग मानते हैं, वो समझते नहीं है कि योग कितना एक विस्तृत विचार है योग। तो राजयोग जो है वो बड़ा आवश्यक है। उसमें कुंडलिनी का जागरण हो सकता है कि नहीं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक किस प्रकार से हो, क्या ना, इसमें बहुत अनेक प्रकार के उसमें मार्ग हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मेरी समझ में ये 4 प्रमुख मार्ग हैं, हाईवेज। बाकी दूसरे सड़कें तो बहुत हैं, लेकिन मेन हाईवेज जो योग के हैं, जो आत्मा और ब्रह्म को मिलाने वाले हैं, वो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। और ये चारों योग जो हैं ये परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि इन चारों का प्रयोग आजकल के घोर कली युग में हमें चारों योगों की आवश्यकता है। परीक्षित भाई, एक योग से काम नहीं चलेगा। हो सकता है सतयुग में एक योग से काम चलता था, द्वापर में 2 से चलता था, त्रेता में 3। अब तो चारों योग हमें, हर एक व्यक्ति को कुछ ज्ञानी भी होना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है अपने शास्त्रों को, कुछ भक्त भी होना है, भक्ति भी कहीं होनी चाहिए, कुछ कर्म भी करना है, कर्म योगी भी होना चाहिए समर्पित, और कुछ थोड़ा बहुत राजयोग भी करना है। तो चारों योगों का जब सम्मिश्रण होता है तब जाके एक सशक्त और महत्वपूर्ण मार्ग बन जाता है आत्मा का और परब्रह्म के मिलन। ये 3 बातें प्राथमिक रूप में समझना है, ब्रह्म, आत्मा और चतुर्मुखी योग।
अब 3 बिंदु और प्रस्तुत करता हूं जो उपनिषद में हो या उसके पश्चात हो, लेकिन जो हमारे आज की परिस्थिति में बड़े महत्व रखते। और जैसे जैसे परिस्थिति बढ़ती जा रही है, काल का समय निकलता जा रहा है, ऐसे इनका महत्व बढ़ता जा। आश्चर्य की बात यह है इनका महत्व घट नहीं रहा, बढ़ रहा। उसमें पहला तो है वसुधैव कुटुंबकम का विचार। अगर आप संसद भवन में जाएं, संसद में क्या होता है उसकी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो आप दूरदर्शन पर देख ही लेते हैं। लेकिन संसद भवन पर अगर आप जाएं तो पहले द्वार पर स्वामी जी निहित है, अयम निज परो वेति गणानाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा एव कुटुंबकम, इसमें भी कई लोग वहां अपभ्रंश करते हैं। वो वसुदेव वासुदेव कृष्ण के साथ मिलाते हैं, वसुदेव के साथ कोई संबंध नहीं है इसका। वसुधा एव कुटुंबकम, विश्व ही परिवार है। देखिए ग्लोबलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं आजकल, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। हमारे हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को समझ लिया था कि अंततो गत्वा, चाहे कितने भी हमारे भेद हों, वर्ण भेद हो, रंग भेद हो, भाषा भेद हो, अंततो गत्वा वसुधा एव कुटुंबकम, समस्त मानव जाति एक परिवार ही है। और मैं मानता हूं कि आज जो परिस्थिति हो रही है विश्व में, इसमें अणु अस्त्र हैं, एक एक अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं, एक ही अस्त्र से सारा विश्व नष्ट हो सकता है। ऐसे युग में वसुधैव कुटुंबकम का विचार जो है वो एक मूल विचार होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं मानेंगे, जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि अंततो गत्वा मानव जाति एक है, तब तक एक ना एक दिन मानव जाति अपने आप को नष्ट कर देगी, जिस प्रकार से ढंग चल रहा। फिर एक और विचार है ऋग्वेद का, एकम सत विप्रहा बहुधा वदन। कैसा सुंदर स्तोत्र मंत्र है। सच्चाई एक है, उसे कहने के, अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। ये जब तक हम इस विश्व के लोग इसको नहीं मानेंगे, तब तक कभी शांति नहीं होगी विश्व। हमारे पूर्वजों ने पहले ही कह दिया कि अनेक मार्ग, आप जिस मार्ग में मर्जी चले। आप एक पर्वत की चोटी तक पहुंचते हैं, दक्षिण से चले, पूर्व से चले, पश्चिम से चले, घोड़े पे चले, पालकी पे चले, पैदल चले, जैसे मर्जी, लेकिन पहुंचना आपको वहां है। यथारध्य संदमाना समुद्रस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता परात्परम पुरुषम अपेति। अंततो गत्वा, वहीं हमें पहुंचना है। ये जब तक नहीं हम माने, हिंदू धर्म वाले तो मानते हैं, बहुत सारे धर्म वाले नहीं मानते हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए मेरा मार्ग सबसे उत्तम है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप मेरे मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपको मैं बम से उड़ा दूं या आपका गला काट दूं या आपको मार दूं या जेल में फेंक। ये विचार एकम सत, जैसे वसुधैव कुटुंबकम का विचार मानव जाति के भविष्य के लिए आवश्यक हो गया है, उसी प्रकार से एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का भी जो विचार है वो भी मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम जो देखते हैं धर्म के नाम पे, वर्ण के नाम पे, वर्ग के नाम पे जो परस्पर विरोध होता है, आप देख ही रहे हैं, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। ये कोई अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, रोज ही आप अखबार पढ़ें तो कोई ना कोई ऐसी भयंकर घटना हो जाती है। पेशावर में जाके 150 बच्चों को मार दिया। ये क्या धर्म है कोई? और कहते नहीं हम धर्म, अपनी धर्म की बात कर रहे हैं। तो धर्म की व्याख्या जो है, जब तक इस मूल आधार पे नहीं होगा कि भाई हमारा मार्ग अपना, आपका मार्ग अपना है। कुरान में भी कहते हैं, एक जगह कहा हुआ है कि मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए आपका। ये बात कोई मान जाए तो फिर कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं कहूं नहीं जी, मेरे ही धर्म पे सबको चलना चाहिए और जबरदस्ती चलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। आजकल के ज़माने में नहीं चलेगा। और अगर इस विचार को ज़्यादा चलाया गया तो एक ना एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि जैसे वो महाभारत के बाद वो एक युग की समाप्ति हो गई थी और द्वारका डूब गया था, उसी प्रकार से हो सकता है कि हमारा जो युग है वो भी समाप्ति पे आ जाए। तो एक हाथ में तो वसुधैव कुटुंबकम की बात, दूसरे हाथ में एकम सत विप्रहा बहुधा वदन। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ बड़ा आवश्यक है, जो हमारे संस्कृति में निहित है,
वो है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। हमने कभी अपने लिए केवल प्रार्थना नहीं की है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने हमेशा समस्त मानव जाति के लिए किया है, समाज के लिए किया। और जब हम भूल जाते हैं समाज के लिए करना और केवल अपना करना लगते हैं, तब जाके परिस्थिति बिगड़ जाती है। जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उन्होंने एक ही मंत्र दिया उनको, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। दोनों बातें करो, अपने आत्मा के मोक्ष के लिए करो अवश्य, लेकिन जगत के हित के लिए। और दुर्भाग्य से हम जगत का हित भूल गए। इसलिए इतने समृद्ध होते हुए भी, इतने हमारे विचार उच्च होते हुए भी इतनी गरीबी है आज भारत में। करोड़ों लोग आज भी भूखे भूखे रात को सोते हैं। करोड़ों लोग बरसात में भीगते हैं, जाड़ों में ठिठुरते हैं, गर्मी में तरसते हैं, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, इनका पर्याप्त विकास मानसिक अथवा शारीरिक नहीं हो पाता। तो मैं कब जाता हूं, जो बोलता हूं बाहर, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छा आपका वेदांत, हम बड़े प्रभावित हैं आपसे, लेकिन आपके देश में इतनी गरीबी क्यों है? आपके देश में बहुओं को क्यों जलाया जाता है? और कोई देश में हमने कोई नियम नहीं सुना हमने कहीं कि बहुओं को जलाया जाता है। तो हमारी कमजोरियां जो समाज की है वो हमें समझना है। छुआछूत का जहर निकालना है हमने अपने देश से। जब हम मानते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, तो ये वेदांत का अपमान है अगर हम कहें कि नहीं आप इस जाति में पैदा हुए इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपका भोजन नहीं करेंगे। ये विकृति है, ये मैं नहीं मानता हूं कि हमारे वेदांत का हिस्सा है। जो भी परिस्थितियां बनी हो, क्या कारण हो, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि हमें वेदांत की बात करनी है तो हम अपने जीवन में और अपने समाज में वेदांत को ढालना पड़ेगा। आप ये नहीं वेदांती अपने आप को कहें और फिर छुआछूत करें, वेदांती अपने आप को कहें फिर महिलाओं का अपमान करें। महिला बिल्कुल अर्धांगिनी के रूप में साथ साथ रहे। केन उपनिषद में भी तस्यैव आकाशे आजगाम स्त्रियम बहुशोभमानाम उमाम हेमवती। जहाँ उमा होगी यहाँ शिव होगा, शिव होगा वहाँ उमा होगा। तुम महिला शक्ति को का अपमान नहीं कर सकते। कुछ धर्म है, कुछ समाज है जो कहते हैं महिलाओं को बिल्कुल अंतर बंद रहना चाहिए, वो मुंह भी नहीं अपना दिखा सकते। ये क्या बात हुई? हमारे यहाँ हम जब पूजा करते हैं, अगर शंकर की करते हैं तो पार्वती की करते हैं सब। उमा, पहले उमा फिर महादेव, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो स्त्री शक्ति का हम पूजा करते हैं, बराबर की करते हैं, बराबर की रखते हैं। इसलिए ये जो रूढ़िवाद हमारे समाज में है, ये रूढ़िवाद बिल्कुल हमारे वेदांत के विपरीत है। और जब तक इस रूढ़िवाद को हम जड़ से उखाड़ नहीं देंगे तब तक हम अपने आप को वेदांती नहीं कह सकते। तो भाइयों बहनों, मैं अधिक नहीं कहना चाहता, मैं केवल मैंने 6 बिंदु आपके सामने रखे हैं। परब्रह्म की व्याख्या, आत्मा हर एक प्राणी में, उनको मिलाने का चतुर्मुखी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, वसुधैव कुटुंबकम का विचार, एकम सत विप्रः बहुधा वदंती का विचार, और सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया बहुजन सुखाय बहुजन। इससे बढ़कर समाजवाद की क्या परिभाषा हो सकती? बहुजन सुखाय बहुजन। तो ये सब अगर हम इकट्ठा लें तो एक हमें एक दर्शन मिलता है आगे बढ़ने की। और ये उपनिषद की एक बहुत बड़ी देन है हमारे लिए, क्योंकि ये ऐसे विचार हैं जो कभी प्राचीन नहीं होते, नवीनतम है। कुछ विचार होते हैं कुछ कि भाई ये हो वो रूढ़िवादी हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे सत्य हैं जिनमें कोई इनको निरस्त नहीं कर सकता। ये हमेशा के लिए शाश्वत है। हमारी यही प्रार्थना है कि ये वेदांत का जो सुगंध है कम से कम हमारे नए जो पीढ़ियां हैं उन तक पहुंचे। कम से कम वो समझने का प्रयत्न करें कि भारतवर्ष ने क्या क्या विश्व को दिया है। हमने जहाज दिए हों या बम दिए हों, या उसमें मुझे कोई रुचि नहीं है।
कि हमें क्या बनाया है, कंप्यूटर बनाया था, क्या बनाया था, उसमें नहीं। ये है हमारी वास्तव में देन। हमने पुष्पक जहाज दिया या नहीं दिया, लेकिन हमने ये उपनिषद का ज्ञान दिया है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इसलिए ये हमारा ज्ञान, ये सबसे बड़ी निधि है हमारी, सबसे बड़ी हमारी विरासत है, सबसे बड़ी हमारी देन है विश्व को और मानव जाति। इसी को लेके हम आगे चलें। और कृष्ण के प्रति मैंने आरंभ भगवान शंकर से किया, अंत में मैं भगवान कृष्ण के चरणों में, क्योंकि आप लोग सब कृष्ण भक्त हैं, वैष्णव हैं यहाँ गुजरात में अधिकतर मुझे लगता है, तो श्री कृष्ण के चरणों में एक श्लोक अर्पित करके अपना भाषण समाप्त करता हूँ। प्रार्थना कृष्ण से है कि हे भगवान, आज ही हमें अपने चरणों में ले लीजिए। जब अंतिम समय आएगा, न जाने आईसीयू होंगे, कहाँ होंगे, कोई आवाज़ निकलेगी नहीं निकलेगी, उस वक्त तक नहीं रुकना। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव में विशदु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवाति पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम। डॉक्टर करण सिंह जी, बिल्कुल जितनी सुंदर प्रार्थना से शुरुआत हुई, मैं सोचती हूँ कि वो ही मूड करण सिंह जी की पूरे बयान को सुनते हुए हमारे मन में बना रहा। बहुत बढ़िया बात की, और हमें इस बात का विशेष आनंद है कि रुडमी और रूरल डेवलपमेंट जैसी बहुत सारी संस्थाएं बहुजन हिताय काम करने का प्रयास कर रही है, और इस प्रयास को इस बात से बहुत बड़ा बल मिला है। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ और स्वामी श्री विदितात्मानंद जी को अपना अध्यक्षीय प्रवचन देने को विनती करती हूँ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। डॉक्टर करण सिंह जी, हम तो आपके प्रवचन से बहुत प्रभावित हैं। शास्त्र में से उन्होंने जो सब वाक्य उद्धृत किए वो तो हम भी नहीं जानते कितना। तो उनकी प्रतिभा, सर्वतोमुखी प्रतिभा, क्योंकि अध्यात्म ये तो उनका एक मुख है। कई क्षेत्रों में वो बहुत विद्वत्ता का अधिकार रखते हैं, और आज हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अध्यात्म के बारे में भी आप इतना विस्तृत ज्ञान रखते हैं और सूक्ष्म समझ भी रखते हैं। आपको धन्यवाद। और जरूर ऐसे नेता हमारे होने चाहिए जिनमें शास्त्र का आधार है। क्योंकि यदि आप किस भी बात करते हैं, राजकारण की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की कोई भी बात करते हैं, इस सबका मूल यदि उपनिषद में है, वेदांत में है, यदि आप वेदांत अच्छी तरह से समझते हैं तो फिर सब कुछ समझ पाएंगे। मतलब सबका स्थान जो है, इसका क्या स्थान है, वो बहुत महत्व की बात है।
बहुत सुंदर सुंदर बातें कही करण सिंह जी ने। उसमें ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ भी है, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, जो भी नाम रूपात्मक जगत है, यत् किंच, जो भी कुछ है, अच्छा है या बुरा है, ईशावास्यम, सर्वत्र ईश्वर निवास करते हैं। निवास ही नहीं करते हैं, जो भी है वो सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति, ईश्वर ही है। हम कुछ आगे जाएंगे आपके कहने से कि सब में ब्रह्म का प्रतिबिंब है और ब्रह्म और आत्मा को मिलाना है, अच्छी बात है। इससे भी आगे, क्योंकि वेदांत कहता है तत्त्वमसि, इसका अर्थ है आप ब्रह्म हैं। और ये उपदेश जब दिया गया तत्त्वमसि, तो जो शिष्य का अनुभव, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो अपना वेदांत है ये मूलभूत सत्य कि मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो कुछ है ब्रह्म है। ये सर्वोत्कृष्ट दृष्टि वेदांत शास्त्र देता है। इसका अर्थ ये हुआ, आपने कहा ब्रह्म सर्वव्यापक है, पूर्ण है, अपरिच्छिन्न है, जिसमें कोई अपूर्णता नहीं है। तो उपनिषद कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं कि आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना है, आत्मा परमात्मा ही है ये पहचानना है। तो ज्ञान मार्ग आपने जो कहा वो पहचानने का मार्ग है, जो है उसको पहचानना, उसको कहते ज्ञान। हम ब्रह्मास्मि, हमको ये बहुत छोटा एक चेतना का अंश मानते हैं या दीनहीन मानते हैं, अल्प तुच्छ मानते हैं। उपनिषद कहते नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं है, आप तो पूर्ण है, ब्रह्म है। ये बात ठीक है। इस वाक्य के बहुत अर्थघटन किए गए हैं, इसके बारे में बहुत भ्रम भी सेवन किया जाता है, लेकिन ये वाक्य बहुत सरल बात कहता है। हमारे जीवन में क्या संभवित है, मनुष्य के जीवन में क्या संभवित है, कहते हैं आप पूर्ण हैं, मतलब आप पूर्ण बन सकते हैं। कहते हैं आपकी पूर्णता को पहचानिए, और पूर्णता को पहचानने के लिए कुछ पूर्ण बनना भी पड़ता है। तो पूर्णता को पहचानना यह है ध्येय। और तेन त्यक्तेन मुंजित, एक ही वाक्य में पहला ध्येय कह दिया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् चिन्त्य जगत्याम जगत। ये जगती में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सर्व ईश्वर ही है। तो ये जो सत्य है जगत का और हमारा, इसको कैसे पहचानना? तेन त्यक्तेन भुंजीता, ते वेदांत टुडे आ गया। तो वेदांत टुडे का अर्थ है हमको दो चीज समझनी है, ध्येय क्या है और मार्ग क्या है। हमारा ध्येय है पूर्णता की प्राप्ति, पूर्णता की पहचान, और मार्ग है कि पूर्णता के अनुरूप जीवन हमको जीना चाहिए। हमको ये पूर्णता को अपने जीवन में कार्यान्वित करना चाहिए। ये सब उपदेश आ जाएगा उसमें। तो उपनिषद कहता है कि आप अपूर्ण है, परिच्छिन्न है,
तुच्छ है, ऐसा मत सोचिए। आपका जीवन ये अपनी अपूर्णता या तुच्छता के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। आप पूर्ण है। अरे भाई मैं पूर्ण हूं, लेकिन मेरा अनुभव तो सब अपूर्णता का ही है। आप कहते हैं सब पूर्ण है, हमको सर्वत्र अपूर्णता ही दिखाई पड़ती है। आप कहते हैं एक अद्वितीय तत्व, हमको सब जगह दिखाई तत्व, हमको तो भेद दिखाई पड़ता है। तो शंकराचार्य महाराज कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका यह अर्थ है कि आपको जो भेदभाव दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है। हमको ऐसा लगता है कि आप भिन्न है, हम भिन्न, नहीं, ये भेदभाव मिथ्या है। दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में नहीं है। तेन त्यक्तेन, तो इस क्या त्यागना है? जो मिथ्या भेदभाव है उसको त्यागना है। आपने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, उसमें से आया कि भेदभाव आप अलग है, हम अलग है। ये भेदभाव हमें क्या करता है? भय उत्पन्न करता है, हमको स्वार्थ प्रेरित बनाता है। इसलिए हमारे जो कर्म है वो सब स्वार्थ से प्रेरित होता है, भय से प्रेरित होता है कि हम ये भेदभाव जो है उसको सत्यता प्रदान करते हैं। कहते नहीं नहीं, ये तो मिथ्या है, ये भेदभाव को आप सत्यता मत प्रदान कीजिए, अभेद है, ये अभेद को सत्यता आप प्रदान कीजिए और अभेद के ऊपर आपके जीवन की रचना की। तो क्या होगा? जब भेदभाव है, जब भय है, जब स्वार्थ है, तो हम हमेशा दूसरों का उपयोग करना चाहते हैं, दूसरों से लेना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, हमारे अहंकार को पुष्ट करना चाहते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन यदि पूर्णता जो सत्य है तो क्या करना चाहिए? कैसे हमारी पूर्णता का आविर्भाव कैसे करना चाहिए? नहीं भी स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ निष्काम कर्म योग आ गया। यदि हम निष्काम मतलब निस्वार्थ बनेंगे तभी जो हमारी स्वाभाविक पूर्णता है उसका धीरे धीरे आविर्भाव कर सकेंगे। तो वेदांत मार्ग भी दिखाता है अब पूर्ण है ये तो ठीक है, लेकिन आगे पूर्णता का आविर्भाव कैसे करना, आपकी पूर्णता को कैसे पहचानना, ऐसा जीवन जीना चाहिए धीरे धीरे हमारी पूर्णता का आविर्भाव हो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग का अर्थ संन्यास तो ठीक है, लेकिन त्याग का अर्थ है स्वार्थ का त्याग, हमारे भय का त्याग। इसलिए अभयम सत्व संशुद्धि, भय का त्याग, स्वार्थ का त्याग, ये भेदभाव के पर आधारित मूल्यों का त्याग। जब भेदभाव है तब हिंसा है, तब असत्य है, तब लोभ है, तब अप्रामाणिकता है। जब अभेद है तब अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। तो वेदांत टुडे का अर्थ ये होगा कि हमारा जीवन जो अभेद है, अभिन्नता है, अद्वितीयता है, उसके ऊपर यदि आधारित हुआ तो हमको निस्वार्थ बनना चाहिए। कैसे बनेंगे? चलो ये मूल्य का आप पालन कीजिए। हमारे स्वामी जी महाराज जो है, दयानंद जी महाराज, एक कॉमन सेंस धर्म की बात है, कॉमन सेंस धर्म। यदि हमको पता नहीं है कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा यदि कुछ हमारे मन में शंका है या संघर्ष है, तो एक बहुत सरल नियम पता, प्रत्येक मानवी ये सभानता लेकर ही उसका जन्म हुआ है। सबको ये स्पष्टता है कि हम दूसरों से क्या चाहते हैं, दूसरे से हमारी क्या अपेक्षा है। मतलब आपको हमारे साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसके बारे में बहुत स्पष्ट है कि भी देखो, हमारी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमारी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको हमारे साथ झूठ नहीं व्यवहार नहीं करना चाहिए, आप हमको प्रेम करना चाहिए, हमारा स्वीकार करना चाहिए, ये सब हमारी अपेक्षा है। तो कहते हैं कि जैसी अपेक्षा हम दूसरों से रखते हैं वैसी अपेक्षा दूसरों भी हमारे पास से रखते हैं। तो हम जैसी अपेक्षा रखते हैं ऐसा ही बर्ताव करना हो गया। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वविदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य।
ये दृष्टि हमारी, ये अभी भावना हमारी होगी, ये मूल्य होगा। हमारा जीवन कोई मांगने का नहीं, लेने का नहीं, उपयोग करने का नहीं, लेकिन देने का, उपयोगी बनने का जीवन हो जाएगा। ये भगवान की भक्ति हो जाएगी, कर्मयोगी हो जाएगा। कभी कर्मयोग कहेंगे, जो कर्म निष्काम भाव से किया गया है उसको कर्मयोग। योग का अर्थ है निष्काम भावना, ईश्वरार्पण भावना, तो कर्मयोग हो जाएगा। भावना कैसी है, हम कैसे उपयोगी बने। परोपकार पुण्याय आपाय परविन, तो परोपकार का हमारे जीवन कैसे हो जाए, तो भक्ति आ जाएगी। ऐसा करते करते धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और जो पूर्णतः हमारा स्वरूप है उसका धीरे धीरे आविर्भाव होता जाएगा। जैसे आंतरिक संतोष धीरे धीरे प्राप्त करते हैं, हम और निष्काम बनते हैं, हम और परोपकारी बनते हैं, हम और द्वेष्टा सर्वभूताना, ये जो सब मूल्य है धीरे धीरे अपने में आविर्भूत होते हैं। वो ये कहाँ तक ले जाएगा हमको, ये अंतःकरण शुद्ध होने से, तो ये शास्त्र का अध्ययन होने से हम पहचानेंगे कि जो हम चाहते हैं वही हम है। सिर्फ मैं ब्रह्म ऐसा नहीं, सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय सब मिथ्या है। कहते हैं जगत नाम की चीज ही नहीं है, मिथ्या करता है कि जो है ब्रह्म है। आप यदि मानते हैं कि ब्रह्म के अलावा कुछ है, तो ये मान्यता मिथ्या है, ये भ्रम है। जो है सब ब्रह्म है, तो ये पहचानना है। ये पहचानने के लिए योग ये मार्ग है, और ज्ञान जो है वो उसका ध्येय है। कहा कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। आपने बहुत बढ़िया बात की, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सबका समन्वय होना चाहिए जीवन में। तीनों का समन्वय हो जाए तो धीरे धीरे हमको ये ज्ञान भी एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे वो भी होता है। और हम देखेंगे जो कुछ है, हम जो भी कचे वो के वासुदेव सर्वमिति, जो सर्व वासुदेव है, ये दृष्टि जो शास्त्र प्रदान करती है, ये धीरे धीरे हमारी दृष्टि होगी। आपकी बात ठीक है कि अभी के जो समस्या है सबका उत्तर वेदांत में है, और यही है यदि वासुदेव सर्व है, तभी जहां कभी कोई भेदभाव नहीं है, तब फिर ये भेदभाव में से उत्पन्न हुए ये सब चीजें धीरे धीरे मिटती जाएगी। तो ये जो है हमारा धर्म बड़ा है, उनका छोटा है, हम ही सच्चे हैं, वो गलत है, ये सब भेदभाव को सत्यता देने के कारण है। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, हाँ, एक तत्व को ही विप्र लोग, महापुरुष अन्य नाम से देते हैं। तो चलो भाई, ये ब्रह्म कहते हैं, जम शैवाह उपासते शिव, एक छवि कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो धीरे धीरे हम विशाल हृदय के बनते जाएंगे, सबका समावेश करते जाएंगे, हमारा विरोध कम होता जाएगा, और धीरे धीरे जो सबके अधिष्ठान रूप एक ऐक्य है, वो ऐक्य के हम नजदीक चलते जाएंगे। और ये वेदांत हमारे जीवन का एक दृष्टि, हमारी दृष्टि बनती जाए। तो वेदांत टुडे का मतलब है अभी जो जरूरत है, नहीं हमेशा जरूरत है। और यही एक चीज है जो आपने कहा, तो वैसुधैव कुटुंबकम एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, जो ऐक्य की बात है। भेदभाव तो सब देखते हैं, लेकिन ये भेदभाव के अधिष्ठान रूप जो ऐक्य है, ये वेदांत दिखाता है। तो इसको यदि हमारे जीवन का आधार बनाया गया, तो सर्व समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो बात जैसे स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा कि अंत में एक ही धर्म होगा, वेदांत। हम चाहते हैं, ये वेदांत कोई धर्म तो नहीं है, ये तो दृष्टि है, और ध्येय भी है, और मार्ग भी है। लेकिन हम इतने संकुचित हो गए हैं, ये तो सब पॉलिटिक्स है, ये हमारा धर्म बड़ा बढ़िया है, आपका तो पॉलिटिक्स है, धर्म तो नहीं है।
ये तो सब लोगों ने अपना पावर बनाने के लिए जो कन्वीनियंस है वो चीज को स्वीकार करके बस अपना प्रभाव, अपने शक्ति प्रभाव कैसे बढ़ाना, ऑल पॉलिटिक्स, नॉट रिलीजन। एनीवे, ये सब प्रश्न भी उकल जाएंगे कि हमको जो चाहिए वो तो हमारे में से लेना, में प्राप्त करना है, बाहर से नहीं। ऐसी दृष्टि मिल गई तो हम हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और हमारे जीवन को सफल बनाएंगे और अन्य को सफल बनाने में भी कुछ कुछ निमित्त बनेंगे। करण सिंह जी, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सरल नम्र पुरुष है, शुद्ध हृदय के हैं। आपके लिए हमको बहुत गर्व है और बस ये जो विचार है सब और उसका प्रचार कीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसी स्थिति, आप तो राजा है ना, तो ये राजा और ऋषि दोनों, इसको राजर्षि कहते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षयो विदुः। भगवान कहते हैं जो उपदेश हमने सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान को किया, सूर्य को किया, सूर्य ने मनु को, इक्ष्वाकु को, ये तो क्षत्रियों के पास था, ये राजर्षियों के पास। राजा भी थे और ऋषि भी थे। ऋषि किसको कहते हैं? सूक्ष्म दृष्टिधरा, जो सूक्ष्म दृष्टि वाले। राजा भी है और ऋषि भी है। देखो, इसकी जरूरत है, हमको राजा से की जरूरत है। बस बहुत भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप ज्यादा और ज्यादा प्रचार कीजिए और सबका कल्याण कीजिए। नमस्ते। मुझे आभार व्यक्त करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूँ। शब्द कम पड़ रहे हैं, या ये कहिए मेरा शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर करण सिंह जी ने कहा कि वेदांत, उपनिषद और ये शास्त्र हमारी देन है, और मैं सुन रही थी उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम अपनी देन को संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे वो कहीं इधर उधर हो रही है, जबकि हमारे व्यक्तिगत वारसा में हमें जो मिलता है उसको हम संभाल लेते हैं। तो क्यों शास्त्र नहीं संभाल पा रहे हैं? क्यों इसके क्या प्रचार प्रसार की कमी है कि जो जनरेशन को समझना है वो नहीं समझ पा रहे? एनीवे, और दूसरी बात एक ये कही कि महिला सशक्तिकरण की बात, क्योंकि ये मेरा प्री टॉपिक है, इस पे 1 सेकंड बोलूंगी बस, है मतलब, क्योंकि 9 दिन में देखती हूँ, 9 दुर्गा जब आती ना तो सब बिल्कुल शेविंग एविंग नहीं करेंगे, जेंट्स पूरी मन तन से ना देवी जी की आराधना करेंगे। 9 दिन तक तो बहुत आराधना करेंगे। 9 दिन के बाद क्या होता है वो मेरे ख्याल से यहाँ सभी बैठी महिलाएं जानती होंगी कि दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं वो जरूर हर्ट होती होंगी। तो 9 दिन भर हम देवी जी की पूजा करें और 9 दिन के आगे पीछे नहीं, तो ये लॉजिक भी मुझे समझ में नहीं आता। तीसरी एक बात यह है कि करण सिंह जी को 3 सीरीज में मैंने जितना समझा है सुन के, वो बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व वाले विरल व्यक्ति हैं, और बहुत ही सरल और सादी भाषा में और हिंदी में, खास तौर से हिंदी में उन्होंने बोला, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत पसंद आया। और आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से 3 दिन हमारे साथ बिताए, इसके लिए आपका खूब खूब दिल से आभार है। जो और इस उपलब्धि के लिए मैं डॉक्टर मंदाबेन पारीक और हमारे पीजे देवेटिया सर को भी धन्यवाद देती हूँ। इसी उसमें स्वामी विदितात्मानंद जी ने भी जो बातें करी वेदांत और उपनिषद की, वो भी इतना तो नहीं कहूंगी कि बहुत समझ में आ गई है इतनी सी देर में, लेकिन हाँ कुछ कुछ जितना मैं कैच कर पाई हूँ उतना किया है, और इसको मैं थोड़ा आगे भी बढ़ाऊंगी ताकि हमारी पीढ़ी और आगे वाली पीढ़ी भी इस बात को समझे। मिस्टर पीके लहरी साहब का भी बहुत बहुत आभार, जो इतने व्यस्त शेड्यूल में से यहाँ आए और अपना टाइम दिया। यहाँ पे ऋषिकेश से अप्रोक्षानंद जी भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, और सभी आमंत्रित मेहमानों का जो इतनी ठंड में भी यहाँ आके बैठे और इतने ध्यान से सुना है? बोला ना। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो प्रचार प्रसार हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अभी अपन राष्ट्रगीत कर लें।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तिरंगा। तब शुभ नावे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये ले जाओ।